تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھارت فیوچر سٹی میں تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ 8 اور 9 دسمبر کو بھارت فیوچر سٹی میں 2 روزہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اتوار کو رنگا ریڈی ضلع کے کندکور منڈل کی بھارت فیوچر سٹی میں تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کی تیاریوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے انتظامات کا جائزہ لے کر حکام کو ضروری ہدایتیں جاری کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حکام کو یہ کہا ہے کہ وہ 8 اور 9 دسمبر کو منعقد تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے لیے بین الاقوامی سطح پر انتظامات کریں۔ دنیا بھر سے نمائندے اس سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے اور مختلف ممالک کے سفیر بھی اس میں حصہ لیں گے، لہٰذا مندوبین کو کوئی بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کوئی بھی بغیر پاس کے اس سمٹ میں شریک نہیں ہو سکتا اور جو لوگ اس سے تعلق نہیں رکھتے انہیں کسی بھی صورت میں وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ افسران کے لیے محکمہ وار اندراجات کیے جائیں گے اور وہ وقتاً فوقتاً انتظامات کی نگرانی کریں گے۔ حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ پولیس اہلکاروں کو اور میڈیا کے نمائندوں کو بھی مناسب سہولیات فراہم کریں اور مناسب انتظامات کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت اس اجلاس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ ریاست کا مستقبل کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ حکومت پہلے ہی یہ اعلان کر چکی ہے کہ 2 روزہ تقریبات عوامی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی جائے گی۔ پہلے دن حکومت کی گزشتہ 2 سالوں کی کامیابیوں اور اسکیمات کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ دوسرے دن حکومت تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن کے دستاویزات پیش کرے گی۔ اس سمٹ میں صنعت کاروں اور بڑی کمپنیوں کے نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ سرور نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سڑک حادثے میں 2 دوستوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ سرور نگر پولیس اسٹیشن حدود کے وکٹوریہ میموریل میٹرو اسٹیشن پلر نمبر 1618 پر ایک سڑک حادثے میں مدھو اور ہریش نامی 2 دوستوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ وہ تیز رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے کہ موٹر سائیکل بے قابو ہو کر میٹرو کے ستون سے ٹکرا گئی۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا اور ایک مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ شہر حیدرآباد میں ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر نو کے کام جاری۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے جون 2026 تک اسٹیشن کو قابل استعمال بنائے گا۔ ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر نو کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ ریلوے حکام جون 2026 تک اسے تیار کرنے اور قابل استعمال بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ وزارت ریلوے کی امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے نیا بھارت نیا اسٹیشن اقدام کے تحت 26.5 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے کام انجام دیے جا رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام مکمل ہو چکے ہیں۔ ملک پیٹ ریلوے اسٹیشن پر مسافرین کو مختلف سہولیات فراہم کی جائے گی۔ غیر ضروری عمارتوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ بہتر روشنی فراہم کرنے، پارکنگ کی جگہ کو اپ گریڈ کرنے اور معذورین کے لیے موزوں بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ماحول دوست عمارت بھی مسافرین کے لیے مہیا کروائی جائے گی۔ یہ اسٹیشن جدید فن تعمیر اور عالمی معیار کی سہولیات کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے۔ خیرتآباد کے رکن اسمبلی دانم ناگیندر نے تلنگانہ اسمبلی اسپیکر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے نااہلی کی درخواست پر جواب داخل کرنے کے لیے مزید مہلت مانگی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر جی پرساد کمار نے خیرتآباد کے ایم ایل اے دانم ناگیندر کو ایک مکتوب روانہ کیا اور ان سے ان کے خلاف دائر نااہلی کی درخواست کے سلسلے میں جواب مانگا۔ ایم ایل اے دانم ناگیندر نے اسمبلی اسپیکر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان کے خلاف دائر درخواست کے سلسلے میں نوٹس کا جواب دینے کے لیے مزید وقت دینے کی خواہش کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسمبلی اسپیکر کی جانب سے دانم ناگیندر کو 2 مرتبہ نوٹسیں جاری کی جا چکی ہیں۔ 10 ارکان اسمبلی جو BRS سے کانگریس میں شامل ہوئے تھے انہیں اسمبلی اسپیکر نے پہلے ہی نوٹسیں بھیجی ہیں۔ 8 ارکان نے اپنے جوابات داخل کیے ہیں اور ان کی سماعت بھی مکمل ہو چکی ہے، لیکن خیرتآباد کے ایم ایل اے دانم ناگیندر اور اسٹیشن گھنپور کے ایم ایل اے کڑیم سری ہری نے نوٹسوں کا جواب دینے کے لیے مزید
मोहलत देने की दरखास्त की है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि उनका मकसद मुल्क की फिजा को ख़राब करना और अवाम में खौफ व हरास फैलाना है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के बयान पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने अपना रद्द अमल जाहिर किया और उनके बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि उनका मकसद मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना और अवाम में खौफ व हरास फैलाना है। उन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बयान जारी करना चाहिए था। उनकी जमीयत उलमा हिंद को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए था। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के सदर से दरख्वास्त की है कि वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अवाम तक सही पैगाम पहुंचाए। उनका कहना था कि पीएम मोदी की स्कीमात से मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने उनकी तारीफ़ नहीं की है और ना ही ऐसा कोई बयान दिया है जिसमें ये दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म मुसलमानों या पूरे मुल्क के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी का बयान अफसोसनाक है। उन्हें अपने मौक़िफ़ के दिफा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चीफ इमाम ने कहा कि हिंदुस्तान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक आलमी रहनुमा बन रहा है और सबको उनका साथ देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, बहुत निंदा भी करता हूँ कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने 45 उम्रा ज़ायरीन की हलाकत के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से मुतासिरा खानदानों को सऊदी अरब भेजने और हंगामी इमदाद फराहम करने को सराहा। वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर भी किया। हैदराबाद के 45 उम्रा ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा के करीब एक अलमनाक हादसे में जाँ बहक हुए थे। हफ्ते को उनकी जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आई। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इतवार को मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी हुकूमत की कार्रवाइयों को सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से मुतासिरा खानदानों को मुश्किल वक्त में हंगामी इमदाद फराहम की गई। वज़ीर आला की हिदायत पर हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए। उनका कहना था कि हुकूमत ने कांग्रेस के सीनियर कायदीन और हुकाम की एक खास टीम तश्कील दी और मुतासिरा खानदानों से ज़ाती तौर पर मुलाकात करने और उन्हें सऊदी अरब भेजने से मुताल्लिक़ फ़ैसला करने को कहा। उनका कहना था कि वज़ीर आला की वज़ारत ख़ारजा के साथ ख़ुसूसी नुमाइंदगी और राब्ते के सबब सऊदी अरब में हिंदुस्तानी हुकाम को मुकम्मल ताउन हासिल हुआ और जाँ बहक होने वालों की जन्नतुल बकी में तदफीन अमल में आ सकी। उन्होंने कहा कि रियासती काबीना ने 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया और मुतासिरा खानदानों को सऊदी अरब भेजने के इंतज़ामात करने के लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का भी फैसला किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस फैसले की भरपूर तारीफ की और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। है कि एक हफ्ता पहले हैदराबाद के उम्रा ज़राइन ने जब मक्का में उम्रा मुकम्मल करके मदीना शरीफ को ज़ियारत पे जा रहे थे, ऑयल टैंकर से एक्सीडेंट होने के बाद बस में 45 हैदराबाद के उम्रे के जाने वाले शहीद हो गए। और उन खबर जैसे ही मिली कि
मदीने से 25 किलोमीटर दूर पर यह हादसा हुआ। तो सबसे पहले खबर सीएम साहब को मिली, रेवंत रेड्डी साहब को। उन्होंने हम सबको अलर्ट किया, बोला कि इसके ऊपर क्या करना है, पहले तुम लोग हज हाउस बैठकर विचार करो और मुझे मशवरा दो। तो सीएम साहब के मशवरे पे हम सब, हमारे अजहरुद्दीन साहब, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर से लेकर तमाम चेयरमैन बैठे। फिर उसके बाद उनके बड़ों के मकान पे गए हम लोग और उनसे भी दरियाफ्त किया कि भाई आपकी क्या राय है, क्या तो वहाँ पे जो जलवे से लाशें हैं उनको यहाँ लाना है या वहीं मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के बाजू में जो कब्रिस्तान है कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर ही तदफीन करना है। तो सब लोगों की राय थी कि नहीं, उतने मुक़द्दस मुकाम पे उनका जब वहाँ शहीद हुए तो वहीं तदफीन करना मुनासिब है। फिर ये बात हम सीएम साहब को। तेलंगाना के महकमा आबरासानी ने अवाम से अपील की है कि वो नामालूम अफराद की जानिब से आबरासानी का बिल अदा करने के लिए मौसूल होने वाले पैगामात का हरगिज़ जवाब ना दें और उनके जरिए भेजी गई APK फाइल्स को भी डाउनलोड ना करें। महकमा आबरासानी के अहदेदारों ने बताया कि ये बात उनके इल्म में आई है कि कुछ नामालूम अफराद नामालूम मोबाइल नंबर से SMS भेज रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि अगर सार्फिन ने आबरासानी का बिल अदा नहीं किया तो कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वो सार्फिन को गलत मालूमात भेज रहे हैं। अवाम से अपील की गई है कि वो ऐसे पैगामात का जवाब ना दें। बताया जाता है कि मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से पैगामात भेजे जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए किसी दूसरे नंबर पर राब्ता करने को भी कहा जा रहा है। उस नंबर पर राब्ता करने के बाद APK फाइल को कार्रवाई के लिए व्हाट्सएप के जरिए भेजा जा रहा है। वाटर बोर्ड ने सारिफीन से अपील की है कि वो होशियार रहें और ऐसे पैगामात पर एतमाद ना करें और ना ही व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाले ऐप्स को डाउनलोड करें। अहदेदारों ने ये वाज़ेह किया है कि वाटर बोर्ड की तमाम सरकारी मालूमात सिर्फ सरकारी चैनल्स के जरिए ही दी जाती है। अगर कोई परेशानी होने पर सारिफीन वाटर बोर्ड कस्टमर केयर से राब्ता कर सकते हैं। जामिया निज़ामिया का सालाना जलसा तक़सीम असनाद हाफिज़ मौलाना सैयद शाह मोहम्मद ताजुद्दीन हुसैनी रिज़वी क़ादरी शर्फ़ी ने जामिया निज़ामिया से फ़ाज़िल मुकम्मिल करने पर सनद फ़ज़ीलत हासिल की। हिंदुस्तान में इल्म व इरफ़ान के मरकज़ और इस्लाम की 1500 साला तालीम रिवायात के अमीन जामिया निज़ामिया का सालाना जलसा तक़सीम असनाद मुनक़्क़िद हुआ। बतुफ़ैल आइमा अहले बैत व फैज़ान सैयदना शाह शर्फ़ी शहज़ादा हुज़ूर पीर व मुर्शद साहिबज़ादा हाफिज़ मौलाना सैयद शाह मोहम्मद ताजुद्दीन हुसैनी रिज़वी क़ादरी शर्फ़ी अलमारूफ़ मुर्तज़ा पाशा जामिया निज़ामिया से फ़ाज़िल मुकम्मिल कर चुके हैं और उन्होंने जामिया निज़ामिया के सालाना जलसा तक़सीम असनाद में सनद फ़ज़ीलत हासिल की है। उन्हें जामिया निज़ामिया से फ़ाज़िल की सनद हासिल करने पर मुख्तलिफ़ गोशों से मुबारकबाद पेश की गई है। दुबई एयर शो में एक फ़िज़ाई मुज़ाहरे के दौरान तेजस लड़ाका तैयारे के हादसे में जाँ बहक होने वाले हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के विंग कमांडर नमान सयाल की मैयत को कांगड़ा हवाई अड्डे पर लाया गया। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के विंग कमांडर नमान सयाल की मैयत इतवार को हिमाचल प्रदेश के ज़िले कांगड़ा में उनके आबाई गांव पटियाल कर पहुंचाई गई। विंग कमांडर सयाल दुबई एयर शो में एक फ़िज़ाई मुज़ाहरे के दौरान तेजस लड़ाका तैयारे के हादसे में जाँ बहक हो गए। उनकी मैयत लाने वाला एक फ़िज़ाई तैयारा कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरा। इस मौके पर उनके अफराद ख़ानदान, उनकी अहलिया, विंग कमांडर अफसाना व दीगर भी मौजूद थे। उनकी बाक़ियात को उनके आबाई गाँव ले जाया गया और उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। कांगड़ा पहुंचने से पहले विंग कमांडर की मैयत को तमिलनाडु के कोयम्बतूर के करीब सिल्वर एयरफोर्स स्टेशन ले जाया गया। कोयम्बतूर ज़िला कलेक्टर ने उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। IF के एहलकारों और मुकामी हुकाम ने भी मरहूम पायलट को भरपूर ख़िराज पेश किया। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने हुकूमत तेलंगाना से बुनकरों की सब्सिडी फौरन जारी करने का मुतालबा किया है।
जागृति जनमबाटा के एक हिस्से के तौर पर जागृति की सदर के कविता ने वानापट्टी जिले का दौरा किया, जहां पर उन्होंने कोटा में हैंडलूम वर्कर्स से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर कविता ने कहा कि कपड़े बुनने वाले कारकुन कस्मों परसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी हालत काबिल रहम है। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद साबिक वज़ीर आला केसीआर ने बुनकरों को पेंशन और सूद के लिए सब्सिडी दी थी, लेकिन कांग्रेस आने के बाद सब्सिडी को रोका गया है। उनका कहना था कि बहुत से बुनकर मजदूरों के तौर पर काम करने लगे हैं। हुकूमत को उनका साथ देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और कर्जे भी देने चाहिए। तेलंगाना जागृति की सदर ने कहा कि अगर नई नस्ल इस फन को आगे ले जाना चाहती है तो उसे हुकूमत का ताउन मिलना चाहिए, बसूरत दीगर हैंडलूम के खत्म होने का खदशा है। उन्होंने बताया कि मुनासिब मुआवजा न मिलने की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को इस पेशे में रहने देने को तैयार नहीं है। अगर हुकूमत उनका साथ देती है तो वो इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से कारोबार कर सकेंगे। नलगुंडा जिला कांग्रेस सदर बनने के ख्वाहिशमंद जी मोहन रेड्डी ने पार्टी में उनके साथ नाइंसाफी करने का इंकशाफ किया। तेलंगाना कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात नलगुंडा जिला डीसीसी सदर के इंतखाब के हवाले से सामने आए हैं। डीसीसी सदर बनने के ख्वाहिशमंद जी मोहन रेड्डी, जो वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के पैरोकार हैं, ने सनसनीखेज बयान दिए पार्टी में उनके साथ नाइंसाफी होने का इंकशाफ किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का पर भी तनकीद की और हाई कमान पर डीसीसी सदर की तकर्री में जात पात की बुनियाद पर फैसले करने का इल्ज़ाम आयद किया। जी मोहन रेड्डी ने उन्हें आरटीसी चेयरमैन का ओहदा देने का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदारती इंतखाबात के दौरान शिवरामपल्ली में वाक़ इस्लामी दरसगाह जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में शदीद कशीदगी फैल गई। हाथापाई में एक शख्स जख्मी हुआ। ज़राए ने बताया, जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हाफिज खालिक अहमद साबिर के हामियों ने मौलाना अब्दुल खबी को कैंपस में दाखिल होने से रोका, जिसके बाद मौलाना खालिक और मौलाना खबी के हामियों के दरमियान बहस व तकरार हुई और बहस झड़प में तब्दील हो गई। इतला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गिरोह के दरमियान धक्का मुक्की के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वाक़े के बाद दरसगाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदर मौलाना पीर शब्बीर अहमद के इंतकाल के बाद ओहदे के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं और इसी दौरान ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। हालात फिलहाल कशीदा मगर काबू में बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों गिरोह से अमन व ज़ब्त बरकरार रखने की पुरजोर अपील की है। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी हैदराबाद सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इतवार को खून का अतिया कैंप कामयाबी से मुनक्किद हुआ। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सदर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन की क़यादत में एक खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। रज़ाकारों ने सैदाबाद की कम्युनिटी मस्जिद में अपने खून का अतिया दिया। आपको बता दें कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से इंसानियत और अमन को फ़रोग़ देने वाली ऐसी सरगर्मियाँ अक्सर अंजाम दी जाती है। ये कम्युनिटी अमन के क़याम के लिए काम करती है और इसकी बुनियाद सन 1879 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने रखी थी। कम्युनिटी का सदर दफ्तर खादियान पंजाब में वाक़ है। इंसानियत रवादारी को इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक समझते हुए ये कम्युनिटी अदम तशद्दुद की मसम्मत करती है। बैनुल-अक़वामी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के मौजूदा 5वें खालसा मिर्ज़ा नसरूर अहमद मुक़ीम लंदन में अपने हेडक्वार्टर से कम्युनिटी की रहनुमाई और खिदमत अंजाम देते हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया। शहर हैदराबाद के इलाके मधुरा नगर में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। एक खातून जाँ बहक हो गई जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि एक 40 साला खातून मधुरा नगर में अपने मकान में खाना पका रही थी कि गैस सिलेंडर के धमाके में शदीद जख्मी होने के बाद
जान बहक हो गई। बताया जाता है कि खाना पकाने के दौरान सिलेंडर से गैस खारिज हुई, जिसके नतीजे में अमीरपेट के मधुरा नगर में एक रिहायशी इमारत की पहली मंजिल पर जोरदार धमाका हुआ और 40 साला सोनूबाई शदीद जख्मी हुई। बादशाह जख्मों की ताब न लाते हुए वो फौत हो गई। सोनूबाई के वालिदैन गोपाल सिंह और ललिता बाई जख्मी हुए हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस और आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। तेलंगाना के कई वुज़रा के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स हैक कर लिए गए। साइबर क्राइम पुलिस ने APK फाइल्स न खोलने का मशवरा दिया है। हैकर्स ने रियासत के हुकाम के मुतादिद व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप्स हैक कर लिए हैं, जिसमें कई वुज़रा और वज़ीर आला के दफ्तर का व्हाट्सएप ग्रुप भी शामिल है। साइबर क्राइम मुजरिमीन ने SBI के नाम से खतरनाक APK फाइल्स भी शेयर की हैं। वुज़रा को SBI के नाम से पैगामात भेजकर आधार अपडेट करने को कहा जा रहा है। साइबर क्राइम पुलिस ने APK फाइल्स न खोलने का मशवरा दिया है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया था। इस दौरान कोर्ट के ऑर्डर की कॉपियां डाउनलोड करने के बजाय सारिफीन को एक गेमिंग साइट भेजा गया था। और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर